In this video presentation, I'll tell you how to convert the sentences from plural to singular. The question is asked in your examination by these words: rewrite, changing the numbers. Rewrite, changing the numbers. So, what is the meaning of changing the numbers? Changing the numbers means that convert plural into singular and singular into plural. Let me explain this to you. In this sentence, the first one, what is plural? Birds is plural. Plural means bahuvachan. बहुत ज़्यादा birds हैं. And what do? They build nests in trees. ठीक है. So what is happening here is we will convert birds into bird. Singular में जाएंगे, thus birds will be converted into bird. Now since it is being converted into bird, it is going from plural to one bird. So one is represented in English by the word a. Okay, we do not write one bird. That's very strange sentence pattern. So what we will do, we will write a bird. Had this been oranges, it would have become an orange. Okay, this you should know. It has been taught to you in previous classes. If not, we will go through this again, but for now you should know that when you are converting a plural word into a singular word, generally a or an is accompanied with it. Now what happens? Birds became a bird. Okay, so birds became a bird. Now since a single bird is building a nest, so the nests will also become a nest. ठीक है. A single bird is not going to build 100 nests. It is not a contractor for other birds. It's not a human civilization. Those are birds. They will do their own work. So a bird will build a single nest. So hence nests also become a nest. Again, common sense that since a single nest is being made, it will not spread around into 3 or 4 trees. It will be on a single tree only. So trees will also get converted into a tree. Okay, this is what common sense says. So you all need to hold the skirt of one thing. What is that one thing? Sense, common sense. You do not leave common sense. You will continue doing your work along with common sense. Okay, there will be sentences in the same exercise where you will think that you should change everything into singular, but then also you should not leave common sense. Here it is necessary to change trees into a tree, but there will be sentences where where changing every single thing into singular would be stupid. That I'll tell you when we reach there. Next rule here is that whenever in simple present tense there is a sentence in simple present tense. What is simple present tense? When something happens regularly. अभी देखो, the birds are going to build nests regularly. पक्षी हर वक्त घोंसला बनाता है. ठीक है, तो पक्षी घोंसले बनाते ही रहते हैं. ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है. सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर अगर डूअर, इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल, अगर काम करने वाला प्लूरल है, सो मतलब बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, सो व्हाट हैपेंस, वर्ब के अंदर एस नहीं आता है. देखो बिल्ड में एस लगा है क्या? नो, द वर्ब इज नॉट अकम्पनीड विथ एन एस. बट एज सुन एज दिस बिकम्स सिंगुलर, जैसे ही ये सिंगुलर बना वैसे ही व्हाट हैपेंड, बिल्ड में क्या जुड़ गया? एस. ये एस देखो, देख रहे हो आप लोग, दिस एस गेट्स अटैच्ड हियर. सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, जब सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा, सिंगुलर पर्सन काम करेगा, तो वर्ब में भी क्या लग जाएगा? एस. जब प्लूरल व्यक्ति काम करेंगे, बहुत सारे लोग काम करेंगे, तो वर्ब में एस नहीं लगेगा. ठीक है, दिस थिंग यू नीड टू कीप इन योर माइंड. नाउ वी विल मूव ऑन टू अनदर सेंटेंस. आई विल शो यू हाउ टू डू इट फॉर योर रिविजन ओनली. इधर हम लोग समझ लेते कॉमन सेंस भी कैसे लगता है. देखो, गुड चिल्ड्रन ऑलवेज ओबे देयर पेरेंट्स. क्या क्या चेंज होगा? व्हाट इज इन प्लूरल हियर? गुड चिल्ड्रन. तो गुड चिल्ड्रन यानी अच्छे बच्चे. व्हाट वी विल डू विथ इट? वी विल मेक इट एक अच्छा बच्चा, तो गुड चाइल्ड. ठीक है, क्या कर दिया? गुड चाइल्ड कर दिया. अभी गुड चाइल्ड क्या है, तो क्या एक कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अभी बताया था, अ लगा देंगे. सो अ गुड चाइल्ड. ऑलवेज तो ऑलवेज ही रहेगा, हमेशा ही करता है, तो कोई ऐसा तो होगा नहीं कि अगर एक बच्चा हो गया तो कभी कभी करने लगेगा. नहीं, अच्छा बच्चा है तो अपने पेरेंट्स की बात हर वक्त मानेगा. ओबे देयर पेरेंट्स. अभी देयर के साथ क्या होगा? देयर इज यूज्ड फॉर उन लोगों के, बहुत सारे लोगों के. अभी बहुत सारे बच्चे थे तो उनके पेरेंट्स थे, सो वी यूज द वर्ड देयर पेरेंट्स. बट नाउ व्हाट वी हैव डन, वी हैव चेंज्ड इट इनटू सिंगल चाइल्ड. एक ही बच्चे की बात कर रहे हैं, तो एक बच्चे के देयर पेरेंट्स होंगे या एक बच्चे का उसका पेरेंट होगा, तो इट विल बिकम हिज स्लैश हर. अगर लड़का है तो हिज पेरेंट्स, लड़की है तो हर पेरेंट्स. अब कॉमन सेंस की बात समझो. पेरेंट्स, हर चीज को अगर सिंगुलर करने जाओगे तो पेरेंट्स को भी पेरेंट कर दोगे, लेकिन
एक बच्चा हो या 100 बच्चे हों, पेरेंट्स तो प्लूरल रहते हैं, कम से कम मम्मी पापा 2 लोग तो पेरेंट्स रहते ही हैं जनरली। सो इस वजह से क्या होगा, वी विल राइट हियर पेरेंट्स ओनली, हम इसको सिंगुलर नहीं करेंगे। दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट इन द प्रीवियस स्लाइड। हमें क्या नहीं छोड़ना है, कॉमन सेंस। सो आई एक्सपेक्ट कि आप लोग को चीज़ें समझ में आई हैं। हमने क्या किया, गुड चिल्ड्रन को गुड चाइल्ड किया। अच्छा, मैं एक चीज़ तो लिखना ही भूल गया। देखिए यहाँ पे क्या वर्ड आना चाहिए था, ओबे। अभी ओबे के साथ क्या हो गया, ये बहुत सारे बच्चे थे, दीज वर मेनी चिल्ड्रन। सो विथ प्लूरल वी डोंट यूज एस इन द वर्ब, बट नाउ व्हाट वी हैव डन, वी हैव चेंज दिस प्लूरल इनटू अ सिंगुलर। एंड व्हेन द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में क्या लग जाता है, एस लग जाता है। सो ओबे में भी क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा। सो द सेंटेंस बिकम्स अ गुड चाइल्ड always obeys his या her parents. I hope this was helpful. If not, I am just a message away. Thank you.